Hello students, this is the second video of the chapter Manufacturing Industries. In this video, I am going to explain you the classification of industries on different bases. Industries can be classified on 5 different bases. First is on the basis of sources of raw materials. On the basis of sources of raw material, we can divide industries into two parts. First is agro-based industries. Agro-based industries are those industries which get their raw material from agriculture. For example, cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee, edible oil, etc. Second is mineral based industries. Now, mineral based industries are those industries which get their raw material from mining. So, for example, iron and steel, cement, aluminium, machine, tools, petrochemicals industries. So, first base is sources of, on the basis of sources of raw material. Second is according to their main role. That means according to their on the basis of their main role, industries can also be classified into two parts. First is basic or key industries. Basic or key industries are those industries which supply their product or raw material to manufacturing other goods. Example, iron and steel industry, copper smelting, aluminium smelting, etc. That means those industries which provide raw material to other industries like iron and steel industries provide raw material to automobile industries. Second is consumer industries. Consumer industries are those industries which supply their production direct to the consumer. For example, sugar, toothpaste, paper, sewing machine, fans, etc. दैट मीन्स बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो उनके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का वर्क कर रही हैं. ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ऐसी प्रोडक्शन हो रही है जो डायरेक्ट मार्केट में सप्लाई होकर कंज्यूमर उसको यूटिलाइज कर रहा है. नाउ हियर वी कंप्लीटेड टू बेसिस. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, थर्ड is on the basis of capital investment. On the basis of capital investment, industries can be classified on different bases. For example, first is small scale industries. Small scale industries defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of the unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is rupees 1 crore. That means on the basis of capital investment, industries can be divided into small scale industries, large scale industries, cottage industries also. But in this book, here two industries are explained: small scale industries and large scale industries. Small scale industries invest near about rupees 1 crore, and those industries which invest more than 1 crore are called large scale industries. Now, next base is on the basis of ownership. On the basis of ownership, we can divide industries into three parts. First is public sector industries. Public sector industries are those industries which are operated by the government. For example, BHEL and SAIL. Now, what is the full form of BHEL and SAIL? Bharat Heavy Electrical Limited, Steel Authority of India Limited. That means कि वो इंडस्ट्रीज़ जो किसने बनाई हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हैं, वो उसका हेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़. ऑन द अदर हैंड, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एट्सेट्रा. Third is joint sector industries. Joint sector industries are those industries which are owned and controlled by state and individual group. For example, Oil India is jointly owned by public and private sector. That means कि उसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का भी होता है, कुछ इंडिविजुअल का भी होता है, और वो जॉइंटली वेंचर होता है. जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड is jointly owned by public and private sector. Next is cooperative sector. Fourth part is also there, that is cooperative sector, that we had done in 9th class also.
Now the cooperative sector industries are owned and operated by producers or suppliers of raw material. That means जो एक जैसा प्रोडक्शन कर रहे हैं या एक जैसा जो सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, those people can make the cooperative sector industries. Workers and both they pool in the resources and share the profits. That means कि एक जैसी प्रोडक्शन करने वाले लोग जब एक साथ एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसको हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, चाहे वो एक जैसे चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले हों या रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाले हों, और वो पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज को, यानी समान भागीदार होते हैं रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए उस इंडस्ट्री के, और जो भी प्रॉफिट होता है उस इंडस्ट्री में या लॉस होता है उसको वो प्रोपोर्शनेटली आपस में बांट लेते हैं. जैसे कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड द कॉयर इंडस्ट्री इन केरला. कॉयर मीन्स जो नारियल का छिलका होता है, जब वो सूख जाता है उसके ऊपर जो हिस्सा होता है उससे जो मैट्रेसेस वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं? कॉयर इंडस्ट्रीज़. ये कैसी इंडस्ट्रीज़ हैं? कॉयर इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री आर कोऑपरेटिव सेक्टर industries. Next base is based on the bulk and weight of raw material and finished good. According to this base, industries can be classified into two parts. First is heavy industries such as iron and steel. Second is light industries that use light raw material. That means those industries which use heavy raw material are heavy raw material such as iron and steel, and those industries which use light raw material produce light goods such as electrical industries. So here we completed the classification of industries on 5 different bases. First is on the basis of sources of raw material, second is on the basis of their main role, third is on the basis of capital investment, fourth is on the basis of ownership, and fifth is on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods. Now we come to in this book full explanation of these different bases of industries is given. So first is agro based industries. As its name suggests, that those industries which get their raw material from agriculture are called agro based industries. तो कुछ agro based industries को यहाँ पर explain किया हुआ है. Like first is textile industries. Textile industries occupies unique position in Indian economy, and because it contributes significantly industrial production, 14% employment generation, 35 million persons directly. That means industrial production का contribution 14% है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का. ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में 35 मिलियन पर्सनस को ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं. सो definitely textile industry occupy the unique position in India. Then the second largest after agriculture, it is also the second largest industry after the agriculture, and foreign exchange earning कितनी है इसकी? 24.6%. It contribute 4% towards the GDP. Gross domestic production में इसका contribution कितना है textile industry का? 4%. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products. That means कि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की जो सेल्फ डिपेंडेंट है. दैट मीन्स उसके रॉ मटेरियल से लेकर गारमेंट बनने तक जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सभी इंडिया में ही होती हैं, और उसके लिए हम बाहर से कुछ मंगाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं. तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दैट दिस इंडस्ट्री इज अ सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री एंड कंप्लीट इन वैल्यू चेन. दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल, कच्चे माल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट तक जब तक ये कन्वर्ट करता है तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? इंडिया में होती है. सो हेयर वी विल बी एबल टू सी दिस चार्ट कि ये वैल्यू चेन है जिससे वैल्यू ऐड होती रहती है. जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इस फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि फाइबर प्रोडक्शन होती है, आफ्टर देन स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, garment manufacturing. So
as we have seen that from raw material to the highest value added product, this industry is self-reliant and complete in the value chain. That means fiber production भी इंडिया में ही होता है. After then ginning जो की जाती है, that is also in India. ginning क्या होती है प्रोसेस टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, कि कॉटन प्लांट से कॉटन को अलग करना, उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं. आफ्टर देन स्पिनिंग, दैट मीन्स कताई जो होती है, जो धागा बनाया जाता है वो भी यही होता है. उस धागे से यार्न से वीविंग की जाती है, निटिंग की जाती है, फिर डाई किया जाता है, जो कपड़ा तैयार होता है, फिनिशिंग की जाती है और उस कपड़े से फिर गारमेंट बनाया जाता है. तो ये जो कंप्लीट चेन है वो कहाँ पर है? इंडिया में ही अवेलेबल है. और इसके लिए हमें बाहर जाने के लिए, इन स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. नाउ कॉटन टेक्सटाइल इज़ द एंशिएंट इंडिया. कॉटन टेक्सटाइल were produced with the hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use and our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they couldn't compete with the mill-made cloth from England. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ हमारी पहले भी थी, बट दैट टाइम जो प्रोसेस थी वो हैंडलूम वीविंग टेक्निक को यूटिलाइज़ किया जाता था. हमारे पास पावर लूम्स नहीं थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन नहीं थी. लूम्स मतलब मशीन्स जिन पर कपड़ा बनाया जा रहा है. हैंडलूम अगर हाथों से चलने वाली मशीन है, और सेकेंडली पावर लूम जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है. तो हमारे कंट्री में कॉलोनियल टाइम पीरियड में हमने कॉटन टेक्सटाइल में सेटबैक देखा, अपना पिछड़ापन देखा था. इट इज़ ओनली बिकॉज कि हमारे पास ऐसी मशीन नहीं थी जैसी किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास. नाउ द फर्स्ट सक्सेसफुल textile mill was established in Mumbai in 1854. The two wars 1854 में इसको अंडरलाइन करेंगे. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ पर बनी इंडिया में? मुंबई में in 1854. The two world wars were fought in Europe and India was British colony, and there was demand for cloth in UK, and hence they gave a boost to the development of cotton textile industries. कि during the two world war in Europe, India was a British colony, कि हम ब्रिटिश कॉलोनी रहे थे दोनों ही विश्व युद्धों के दौरान. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड यूके में जब कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा डिमांड थी, दिस वाज द रीज़न व्हाई ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग देयर मनी in textile industry in India. As on 30th November 2011, there was 1946 cotton and human-made fiber textile mill in the country, and about 80% of these are the private sector and rest in the public and cooperative sectors. Now, apart from these, there are several थाउजेंड ऑफ स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स, की बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं. थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फैक्ट्रीज आर देयर जिनके अंदर 4 से लेकर 10 मशीनें हैं. नाउ इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन एंड ग्रोइंग बेल्ट ऑफ. की बिगनिंग में हमने ये देखा कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली उन एरियाज़ में थी जहाँ पर ज़्यादा कॉटन उगाई जाती थी या उगाई जाती है, that are Maharashtra and Gujarat. Availability, as we have done in the beginning, that for establishing the industries we required some factors, और ये जो कुछ factors हैं वो सभी यहाँ आस पास अवेलेबल थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को महाराष्ट्र और गुजरात में इस्टेब्लिश करने के लिए. लाइक रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल, मार्केट इज़ देयर, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी इज़ ऑल्सो देयर. And this industry has close links with agriculture and provide living to farmer, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, as I had already told you that ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, sewing, these all are steps of production of cotton textile. The industry, by creating demand, support many other industries such as chemical, dyes, and mill stores, packaging material and engineering works also. That means कि ये जो cotton textile industry है ये कुछ other industries को भी support करती है, like packaging, mill store, material, engineering works, etc. So it is very important industry of our country. Now while spinning
continues to be centralized in Maharashtra and Gujarat, Tamil Nadu. Weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designing of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. That means what we have seen कि महाराष्ट्र और गुजरात तमिलनाडु में स्पिनिंग कॉन्टिन्यू है, वो सेंट्रलाइज्ड है, वहीं पर होती है. ऑन द अदर हैंड अब देखते हैं कि जो वीविंग है यानी जो बुनाई है वो हमारी कंट्री में डिसेंट्रलाइज्ड है. सिर्फ यहीं इन्हीं प्लेसेस पर नहीं होती है बल्कि पूरी कंट्री के अंदर हर हिस्से में वीविंग की जाती है. बट जो वीविंग से बनने वाला कपड़ा है हमारी कंट्री में वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है. अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमारी कंट्री में जो यार्न यूज़ किया जाता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यार्न यूज़ नहीं किया जाता अपनी मशीन्स के ऊपर, क्योंकि जो हाई क्वालिटी यार्न है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री. होना क्या चाहिए कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ में हाई क्वालिटी यार्न को यूज़ करके अच्छे से अच्छा कपड़ा बनाना चाहिए, सो दैट कि हम कंपटीशन कर सकें. लेकिन ऐसा नहीं है. हमारी कंट्री में स्पिनिंग होती है, यार्न अच्छा बनता है, बट वो सारा अच्छा यार्न हम बाहर सप्लाई कर देते हैं और हमारी अपनी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसके लिए सफ़र करती हैं. द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर इन द होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें खादी जो बनाया जाता है वो बहुत सारे वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. ऑन द अदर हैंड स्टडी फिगर्स अबव नोट द शेयर ऑफ मिल इन द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक. अगर हम शेयर देखें मिल का प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक में तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही लो है एज़ कंपेयर टू अदर कंट्रीज़. एंड उसमें बड़ा भी नहीं है. पावर लूम इन हॉजरी हम देखते हैं कि स्टैगनेट है काफ़ी टाइम से. On the other hand, why it is important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and hand loom? That means कि हमें मिल सेक्टर जो है उसमें हमें क्या करना है कि जो पावर लूम और हैंड लूम जो बनाया जाता है हमारी कंट्री में उससे ज़्यादा हमें मिल सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है. इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान अदर कंट्री. हम जो धागा होते हैं वो अच्छी बाहर अच्छा धागा जो है हम उस यार्न को बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, लाइक रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. And India has the second largest installed capacity of spindles in the world. On the other hand, अगर हम ये देखें कि जो रीलें स्पिंडल्स मतलब जो रील बनती हैं तो उसमें भी हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. चाइना के बाद हमारा नंबर आता है. सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन. बट स्पिनिंग सेक्टर तो बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है, बट वीविंग सेक्टर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड कॉटन यार्न अकाउंटिंग 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड. यानी टोटल ट्रेड जो होता है पूरे वर्ल्ड में कॉटन यार्न का उसमें से 1/4 जो है वो हमारी ही कंट्री बाहर एक्सपोर्ट करती है. हाउएवर आवर ट्रेड इन गारमेंट इज़ ओनली 4%, जबकि ऑन द अदर हैंड जो बना हुआ कपड़ा है हमारी कंट्री से जो बाहर जाता है वो सिर्फ कितना है 4% है वर्ल्ड में. तो आज स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस. हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं उन मिल्स में बनने वाला जो हमारा यार्न है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कंपटीशन करता है. बट द वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. एंड देयर आर सम लार्ज मॉडर्न फैक्ट्री इन सेगमेंट बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेड इन स्मॉल यूनिट्स. कि बहुत ही कम बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल की हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमारी कंट्री में होता है जो कि सही नहीं है. विच केटर टू लोकल मार्केट. दिस मिसमैच इज मेजर ड्रॉबैक for the industry. As a result, many of our spinner export yarn while apparel garment manufacturer have to import fabric. अब यही रीज़न है कि हमारी कंट्री में यार्न जो है उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो गारमेंट को अच्छा गारमेंट हमारी कंट्री में बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है और उसको हम बाहर के कपड़े से कॉम्पिटिट भी नहीं कर पाते. नाउ there they give the challenges
faced by the jute industries. Of which kind of challenges faced by the jute industries? As we have seen in the case of cotton industry also, first is stiff competition in international market from synthetic substitute, because international market में synthetic substitutes बहुत ज़्यादा है, यानी synthetic material बहुत ज़्यादा है, इसलिए jute material को लोग इतना नहीं खरीदते हैं. From other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. एंड अब इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता है इन सभी कंट्री से. हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग. हमारी कंट्री में जूट पैकेजिंग को कुछ एरियाज़ में मैंडेटरी करने की वजह से जूट प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा मिला. अदरवाइज़ उससे पहले इतना ज़्यादा जूट प्रोडक्शन नहीं की जाती थी, जूट मटेरियल्स को नहीं यूज़ किया जाता था. तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जूट जो है उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट किया जा सके. To stimulate demand, the products need to be diversified. In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity. अब this is also very much important question कि why National Jute Policy was formulated and in which year? In year 2005 it was formulated और उसका objective क्या था? इंक्रीज़ करना जूट प्रोडक्टिविटी को, इम्प्रूव करना उसकी क्वालिटी को, इंश्योर करना गुड प्राइसेस फॉर जूट फार्मर्स, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को एनकरेज किया जा सके जूट फार्मिंग के लिए. एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके पर हेक्टर जूट प्रोडक्शन को, उसके लिए अच्छी खाद बीज वगैरह का यूटिलाइजेशन शुरू किया गया. द मेन मार्केट्स आर USA, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब, UK, Australia. The growing global concern environment friendly biodegradable material has once again opened the opportunity for jute product. क्योंकि अब सारी दुनिया क्या कोशिश कर रही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा सके जो बायोडिग्रेडेबल हो. इसीलिए अब इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है और इस टाइप ऑफ क्रॉप को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है. नाउ वी कम टू next agro-based industry, and that is sugar industry. India stands second as world producer of sugar but occupies the first place in the प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी, यानी गुड़ और खांडसारी में उसका नंबर 1 आता है. द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि, इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है दैट इज़ वेरी मच बल्कि. एंड इट्स हॉलेज मतलब कि उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना, उसकी जो ढुआई होती है, ढुआई मतलब उसको ढो कर ले जाना, यानी उठा कर ले जाना. अब किसके थ्रू जाएगा? टू ट्रांसपोर्ट. तो हॉलेज जो है इट्स सक्रेस कंटेंट रिड्यूसेस. तो उस टाइम पीरियड में जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड उसके अंदर जो रस है, जो सक्रेस कंटेंट है, वो रिड्यूस हो जाता है. वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड, तो मिल्स को कहाँ पर लोकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन 2010 and 11 देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री, स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, Punjab, Haryana, and 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. This industry is seasonal in nature. These are some characteristics of these industries कि ये कैसी हैं, सीजनल है इन नेचर एंड इट इज़ आइडली सुटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर. जैसे हमने किया कोऑपरेटिव सेक्टर क्या कौन से होते हैं? जो एक जैसी प्रोडक्शन करने वाले जो लोग हैं, जब एक कॉपरेट बना लेते हैं तो उसे हम कोऑपरेटिव सेक्टर बोलते हैं कि वो उसके लॉसेस में और फ़ायदे में समान भागीदार होते हैं. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज़ सो? इन रिसेंट ईयर देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द mills to shift concentrate in southern and western states, especially in Maharashtra, and this is because the cane produced here has a higher sucrose content and the cooler climate also ensure long crushing season. Moreover, the cooperative are more successful in these states. Major challenges, अब ये जो कॉटन शुगर मिल्स हैं, ये सदर्न पार्ट में ज़्यादा शिफ्ट होती जा रही हैं. इसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ का कूलर क्लाइमेट है, लॉन्ग क्रशिंग सीज़न होता है और हाई सक्रस कंटेंट होता है वहाँ के शुगर केन के अंदर. और कॉपरेटिव्स भी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हैं, इसलिए सदर्न पार्ट में इस्टेब्लिश होने लगी हैं ये इंडस्ट्रीज़. मेजर चैलेंजेस क्या हैं इस इंडस्ट्री के? इंक्लूड द सीजनल, क्योंकि ये सीजनल है इन नेचर. ओल्ड इनएफिशिएंट मेथड प्रोडक्शन के यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट डिले होता है, फैक्ट्रीज तक पहुँचने में कच्चे